سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کے مقابلے میں جو بدعتیں کری گئی ہیں ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. یہ جنتی جماعت کی پہچان. 11ویں پہچان جنتی جماعت کی 10ویں پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کو جنتی جماعت کے لوگ مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنے نبی کی باتوں کو اور نبی کے صحابہ کی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تاکہ اس دنیا کے اندر عزت و بلندی حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد کر سکے یہاں تک کہ دنیا کے اندر بھی باعزت ہو اور جب مرو تو اللہ وحدہ لا شریک یہاں بھی باعزت طریقے سے جنت الفردوس میں چلے جاؤ اور اللہ کے نبی کی شفاعت کے حقدار بنو. جنتی جماعت کے لوگ اس بات کی دعوت مسلمانوں کو دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بلاتے ہیں اس بات کی طرف. اور جنتی جماعت والوں کی 11ویں پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں سیاسی قوانین جو انہوں نے اپنے من گھڑت بنائے ہیں یہ سوشلزم ہے یہ سوشلسٹ ہے یہ کمیونسٹ ہے یہ جمہوریت ہے یہ فلانیت ہے یہ فلانیت ہے یہ یعنی خود وضع کیے گئے قوانین جو ہیں خود انہوں نے اپنے من گھڑت بنائے ہیں. قرآن و سنت کے اوپر قرآن و سنت سے فیصلے نہیں کرتے. جنتی جماعت کے لوگ ان تمام قوانین کا رد کرتے ہیں اور ان تمام قوانین سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر نافذ کرو قرآن و سنت کو نافذ کرو. جس طرح سے مملکت سعودی عربیہ کے اندر جو ایک نمونہ اور ایک سیمپل ہے دنیا کے لیے یہاں پر قرآن و سنت نافذ ہے اور دنیا اس سے عبرت حاصل کر سکتی ہے کہ الحمدللہ چاروں طرف امن و شانتی کے پھول برس رہے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں زمین خزانے ابل رہی ہے آسمانوں سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور الحمدللہ امت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور دعوت بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. اے دنیا کے مسلم ممالک کے لوگوں ان تمام بنائے ہوئے مغربی قوانین کو یورپی قوانین کو برٹش کی غلامیت کو ترک کرو اور اللہ اس کے رسول کی غلامی حاصل کرو اور اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے کے اندر آؤ کیونکہ اسی کے اندر امت کی فلاح ہے اسی کے اندر امت کی فلاح ہے اور اسی قوانین کے نافذ کرنے سے امت کے اندر جو ہے خیر اور بھلائی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان برائیوں کا خاتمہ کسی اور قانون سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اسلامی تعلیمات سے ہو سکتا ہے اور مسلمان اگر عزت پا سکتے ہیں تو اسی اسلامی قانون سے نافذ کرنے سے عزت پا سکتے ہیں. اور یہ حکم اپنی جماعتوں کے اندر بھی نافذ کریں اور وہ ملک کے سلطنت کے اندر بھی اپنے اس حکم کو نافذ کریں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس کو اپنی حالت سے بدلنے کا خیال نہ ہو. 12ویں نشانی جنتی جماعت یہ ہے کہ وہ جہاد کی طرف فی سبیل اللہ جہاد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کہ لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یہ جہاد تین طریقوں کا ہوتا ہے. ایک تو جہاد بالقلم اور بالسیف ہے. جہاد تلوار سے زبان جہاد باللسان اور بالقلم اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم قلم کھاؤ اور اپنی زبانوں کو کھولو اور شرک اور خرافات اور بت پرستی اور باطل پرستی کے خلاف نعرے بلند کرو اور اس کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرو. اگر تمہارے پاس طاقت ہر مسلمان کے اوپر اپنی اس کے طاقت اور اپنی قوت کے حساب سے زبان اور قلم سے جہاد کرنا یہ فرض ہے. زبان اور قلم سے جہاد کرنا یہ فرض ہے. چنانچہ اللہ کے اور امت کو اپنے زبان اور اپنے قلم سے متنبہ کرو. اس شرک اگر کرتے رہو گے تو تم دنیا کے اندر کتنی بھی بڑھتے چلے جاؤ کبھی بھی خیر اور فلاح نہیں پا سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. رواه ابو داؤد. صحیح ابو داؤد کے اندر سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. کیا آپ لوگ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے چند قبائل بہت سارے قبائل بہت سارے لوگ چند قبائل مجرموں کے ساتھ مل نہ جائیں. یعنی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ اوثان کی پوجا نہ کرنا شروع کرتے ہیں. اوثان کس کو کہتے ہیں؟ بدھ. یہ بدھ جو اردو
उर्दू का लफ्ज़ है ना, ये दोनों मानों में मुश्तरक है, लेकिन अरबी में इसको जाहिर करने के लिए दो लफ्ज़ है, एक है सनम और एक है वतन। वतन की जमा अवसान, सनम की जमा असनाम। असनाम स्टेचू को कहते हैं जिनकी शक्ल सूरत बना दिया है ना, जैसे लक्ष्मी जिसको माल गौरव कहते हैं, रुपया है, अब उसकी सूरत बनाते हैं, ये लक्ष्मी है, ये अग्नि माता है, और ये गंगा मैया है, ये गंगा मैया है, उसकी सूरत बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो इसको सनम कहते हैं। ये राम है, लक्ष्मण है, ये फलाने ये फलाने ये फलाने, इसको सनम कहते हैं। ये गौर है, ये पांचों तीन है, पांचों तीन की तस्वीरें हमारे यहाँ बनाते हैं और बड़ा बना हमारे घरों में लटकाए, उनका बाजार भी बना है और पांचों तीनों की तस्वीरें भी बनी है और तस्वीर लेके बैठे हजरत अली की तस्वीर बनाई, हजरत और आपने देखा होगा शहर मुसलमानों में बदअकीदा मुसलमानों में वो बुराक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक है, जिसके तहत आप मेराज में गए थे, इस जालिमों ने उस बुराक की भी तस्वीर बनाई, उस बुराक की तस्वीर भी बनाई, तो शक्ल किसी औरत की बनाई, और औरत भी किसकी शक्ल, किसी रंगीन कवायद की शक्ल, किसी हिरवीन की शक्ल ले जाकर के उस बुराक के सर के ऊपर फिट किया। नौजुबिल्लाह, मुसलमान तेरी शहवत के ऊपर अल्लाह की लानत हो। इस तरह की शहवत रखती तो नबी का बुराक भी बनाया, और उस नबी का बुराक जिस नबी मासूम ने गैर औरत को अपनी निगाह नजर गैर औरत को बेपर्दा उठा करके नहीं देखी है, उस नबी का बुराक भी बनाया, तो अपनी रंगी कवायद की शक्ल लगा करके और घोड़ा बना के उसकी पूजा करते नहीं करते हमारे मुल्कों में बुराक बना के बाकायदे कैलेंडरों पे छपाते हैं, जनाबे आली सतारों में दिखाया गया पर लगा के उसके, हाँ, तो उसकी बुराक बना करके देखते, तो ये सब सनम कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? सनम, जिसकी शक्ल और सूरत, लेकिन बेशक्ल और सूरत जो चीज हो और उसकी परस्तिश हो उसको वतन कहते हैं। जैसे ये कबर, ये वतन है, इसमें शक्ल और सूरत नहीं है ऊपर, लेकिन ये वतन है। ताजिया वतन है, शक्ल और सूरत नहीं। शद्दा वतन है, इसी तरह आलम वतन है, चबूतरे वतन है, ये भी वतन है, लेकिन इन सबकी पूजा होती। चिल्ले फलाने कबर की मिट्टी उठा के फलाने गौ से पाक के कबर की मिट्टी, गौ से पाक के कबर की फलाने बाबा फलाने ढकाने की ईट लगा करके, ये जो है वतन नहीं है। पूजना ये भी वतन है, खत्म मुबारक फलाने का, कब्र मुबारक फलाने की बाले मुबारक फलाने का, नाखून मुबारक फलाने का फलाने का फलाना, गलत इस तरह ये वतन है जिसकी शक्ल सूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्र वतन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वतन न बनने देना, वतन न बनने। जाहिर अल्लाह के नबी को पता था कि शक्ल सूरत नहीं बना सकते, लेकिन वतन न बनने देना ताकि लोग पूजा और परस्तिश करें। लान अल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाह बना दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वतन जिसकी पूजा की जाए, परस्तिश की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि स्टेचू नहीं पूजेंगे, ठीक है, मूर्ति नहीं पूजेंगे, ठीक है, सब कुछ नहीं, लेकिन वतन की परस्तिश होगी और हो रही। उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग वतन, आपने सनम नहीं फरमाया क्योंकि सनम दुनिया जानती है भाई, जाहिर जाता है उसी को मत पूजो, लेकिन बहरहाल कुछ और जाहिर है जो पूछते हैं बुराक की शक्ल बना के, यह अलग बात है। लेकिन कुछ लोग वतन की पूजा करेंगे, वतन मुशरिकों के साथ और क़यामत करीब है। यह हदीस मुस्नद अहमद के अबू दाऊद के अंदर है और इसका माना सही यकीन के अंदर है। तो इसी तरह से इन दो बिलाद इस्लामिया में, इस्लामी ममालिक में जो इस तरह के शिर्क या अमाल बिखरे हुए हैं, इसके खिलाफ अलग जिहाद बदल किया जाए, जुबान के जरिए, कलम के जरिए, ये एक जिहाद है। इसी तरह माल के जरिए जिहाद करने की जन्नती जमात के लोग दावत देते हैं कि माल के जरिए जिहाद करो, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की सही तालीमात को नष्ट करने के लिए, सही किताबें कुरान और सुन्नत के, सही बुखारी अबू दाऊद जैसे इब्न माजा, इनकी इत्तिबा करवाओ, इनको दुनिया के अंदर फैलाओ, और जो गैर मुस्लिम हैं उनके अंदर माल को दो ताकि वो इस्लाम से करीब आए। सबके खैरात ये तमाम चीजों को दीन से करीब करने के लिए उनको माल और दौलत के ऊपर खर्च करो। इसी तरह से माल के जरिए मुजाहिदीन जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं उनके लिए पैसे दो, तुम खुद नहीं जा सकते तो पैसे खर्च करो ताकि उनके लिए अमले आए, उनके लिए ट्रेन का, उनके लिए क्लास को बदलाएं। इस तरह से जन्नती जमात के लोग आए जो मालों के जरिए जिहाद करेंगे। लोग गरीबों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये तमाम सब जिहाद में शरीक है। इसी तरह अपनी जानों के साथ भी जिहाद करते हैं, जुबानों कलम से भी जिहाद करते हैं, मालों के जरिए भी जिहाद करते हैं और अपने जान से भी जिहाद करते हैं। और जिहाद में
शरीक होते हैं ताकि इस्लाम का कलिमा बुलंद हो, अल्लाह का कलिमा बुलंद हो। और जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है और फरमाया कि जाहिदुल मुशरिकीना बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अल्सिनतिकुम, सहीह रवाहु अबू दाऊद के अंदर, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। और अल्लामा अलबानी ने हदीस को सही करार किया है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मुशरिकों से जिहाद करो, मुशरिकों से जिहाद करो बिअमवालिकुम, अपने मालों के जरिए से, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के जरिए से, व अल्सिनतिकुम, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो अपनी जुबानों के जरिए जिहाद करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती जमात की पहचान क्या है कि बरसरेआम बरसरे वो तौहीद का नारा बुलंद करते हैं, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए शिर्क और खुराफात के खिलाफ जिहाद के नारे बुलंद करते हैं, और इन कब्रों को बमब्लास्ट करने के लिए शिर्क की जितनी भी मज़ाहिर और निशानियां हैं इनको तोड़ने के लिए जन्नती जमात के लोग बरसरे पैगाम होते हैं। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह हमें इस ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए कि हम इन कलिमा को मुशरिकों के खिलाफ नारे जिहाद बुलंद करके अपनी जुबान के जरिए तो कर ही रहे हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए माल के जरिए भी करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए अपनी जान के जरिए करें, और इन कब्रों को मज़ाहिर है जो शिर्क के जो अलामात हैं उनको इस ज़मीन से पाक साफ कर दें। तो ये है जिहाद, ये है जन्नती जमात की पहचान कि वो जिहाद की तरफ दावत देते हैं। और ये जिहाद दो तरह का होता है, एक जिहाद फर्ज़े किफ़ाया है और एक जिहाद फर्ज़े ऐन है, यानी अगर कुछ लोग जिहाद कर रहे हैं तो उनकी मदद की जाए, ये फर्ज़े किफ़ाया है। और कभी कभी ये जिहाद जो है फर्ज़ ऐन हो जाता है, जबकि अमीरुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन तमाम लोगों को दावत दे कि चलो जिहाद करने के लिए, तो उस मुल्क के जितने लोग हैं सबके लिए जिहाद फर्ज़ ऐन हो जाता है। उस मुल्क पर हमला हुआ, लेकिन अगर फौज लड़ रही है तो उम्मत के लोगों को, जो मुसलमान हैं, उनके लिए तैयारी है और उनके लिए यह है कि जब कभी भी हुक्म आएगा जाएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अपनी जुबान, अपने माल, अपने सबके जरिए से वो जिहाद को जारी रखते हैं। तो मेरे अजीज ये चंद निशानियां थी, चंद तरीके थे जन्नती जमात के लोगों। अब एक दो बातें निशानियां बयान करके मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मजीद जन्नती जमात के लोग जो है वो हमेशा थोड़े तादाद में होते हैं, लोगों के दरमियान उनकी तादाद हमेशा थोड़ी होती है, और उन्हीं के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला अल्लाह के नबी फरमाया तूबा लिल ग़ुरबा, उन थोड़े लोग जो अजनबी के बेचारे, उनके लिए जन्नत की कुछ खबरियां हैं। उनासुन सालिहूना फी उनासिन सूइन कसीर मन यातीहिम अक्सर मिम्मन युतीहिम मिम्मन युतीहुम, रवाहु अहमद, मुस्नद अहमद की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनासुन सालिहून, चंद नेक लोग होंगे, ज्यादा बुरे लोग ज्यादा होंगे, उन लोगों में चंद नेक लोग होंगे जो और कम लोग उनकी इत्तिबा और उनकी बातों को तस्लीम करेंगे, अक्सर लोग उनके खिलाफ होंगे, अक्सरियत उनके खिलाफ रहेगी, अक्सर लोग उनकी नाफरमानियां करते रहेंगे। लेकिन हमको मानने वाले हमेशा किसी भी तादाद में रहेंगे, थोड़े भी तादाद में रहेंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला शरीफ ने अपने नबी की इस बात की तारीफ में कुरान करीम में फरमाया कि वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही, सूरह सबा आयत नंबर 13, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही लोग हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से एक और पहचान जन्नती जमात की ये भी है कि लोग उनसे दुश्मनी करेंगे, उनके ऊपर इफ्तराबाजी करेंगे, झूठी तोहमतें लगाएंगे, उनको गुस्ताख कहेंगे, उनको बदकार कहेंगे, उनको मरदूद कहेंगे, उनको बुरे बुरे अल्फाज से उनको नवाजेंगे, बुरे बुरे बातों से उनको याद करेंगे। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, सुनो, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन, अल्लाह ने फरमाया हमने, ऐ नबी घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हें लोग बुला रहे हैं, हमने हर नबी का दुश्मन बनाया है, हमने हर नबी को नहीं आया, हमने दुश्मन बनाया शयातीनल इंस वल जिन्न, इंसानों में जो शैतान है उनको और जिन्नातों में जो शैतान है उनको। चुनांचे अल्लाह के नबी के शैतान इंसानों में से भी थे और अल्लाह के नबी के दुश्मन शैतान जिन्नातों में से भी थे, और कुछ वो भी जिन्नात थे जो नबी के खिलाफ को बेईमान है। तो जिन्नातों में भी शैतान जो है और इंसानों में जो शैतान है, अल्लाह तबारक व तआला का हर नबी के दुश्मन है। यूं ही इन शैतानों में से हर एक दूसरे से खूब मीठी मीठी बातें करता है, खूब बना संवार के अपनी बातों को पेश करता है और खूब उसको लचकदार और लिपसेदार बयान कर करके उम्मत के अंदर गुमराहियत को फैलाता है। ये शैतानी लोग हैं,
یہ شیطانی لوگ ہیں۔ تو اگر تمہارے ایسے لوگ دشمن بن جائیں جو تمہیں برے الفاظ سے نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نوازا گیا، کہا یہ جھوٹے ہیں، نبی کریم کذاب ہیں، نبی جادوگر ہے، یہ نبی مجنون ہے، یہ نبی پاگل ہے۔